Good morning, everyone. I welcome you all to yet another session on our Sunday English speaking series. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. And the topic, as you can see, it is mastering English tenses, the secret to clear communication. As we see in English, at times, understanding tenses becomes confusing. And we don't know which tense we have to use, how we have to respond to someone when someone asks us a question, and we don't know what is the tense that we have to use in order to respond to this person. So I will try to demystify everything in terms of the tenses that we have in English, and we'll move ahead. I'll be using Hindi and English to clarify certain things. And if at all you have any questions, any queries, feel free to unmute yourself during the presentation and ask me questions, or even at the end, I would open up the session for questions. All right, so we'll get going. It's going to be a master class, which means that there's a lot that's there in this class for you. So I'll try to do it in a way that it becomes easier for you to understand. But feel free to ask me questions, and we'll try to cover up all the tenses in English in this 1 hour. Let's see how things unfold for us, because it's not an easy thing, but let's try to do as much as possible. All right, I'll just let people in quickly. Good morning, everyone. Those who have just joined, we have just started. The topic that you see on the screen, it is mastering English tenses, the secret to clear communication. तो हमने देखा है कि इंग्लिश जब हम बोलते हैं तो कई बार हमें इस चीज में दिक्कत आती है कि कौन से टेंस को हम काम में लें. हमें टेंसेस का आइडिया होता है, बट व्हेन वी हैव टू यूज देम वी गेट कंफ्यूज्ड कि हम पास्ट टेंस यूज में लें, कि हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट काम में लें, कौन सा टेंस काम में लें, और इन टेंसेस का क्या रेलेवेंस है. तो आज उस सभी कंफ्यूजन को हम दूर करने का प्रयास करेंगे इस सेशन में. दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग सेशन, लॉन्ग एज इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ कंटेंट आई एम गोइंग टू पुट अक्रॉस. So please feel free to ask me any questions if at all you have in the course of the session. Unmute yourself, ask me questions, and let's get started. So um, first and foremost, the number of tenses that we have, जो हमारे पास tenses होते हैं English के अंदर, they are 12 tenses. As you can understand, we have past tense, we have got present tense, and then we have got future tense. So basically, we have three main tenses, and those tenses are further subdivided into 4 categories each tense. So past के अंदर हमारे पास होता है simple past, past continuous, past perfect, और past perfect continuous. इसी तरीके से हमारे पास प्रेजेंट में होता है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. एंड सिमिलरली वी हैव इन फ्यूचर, वी हैव गॉट सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो इट्स वेरी सिंपल टू रिकॉल. आपको पता ही है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, और हर टेंस जो है वो फर्दर मोर डिवाइडेड है 4 कैटेगरीज में. सिंपल पास्ट, तो आप सिंपल वर्ड यूज करेंगे, सिंपल पास्ट हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर. साथ में हो जाएगा हमारे पास कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस. फिर आता है परफेक्ट, व्हिच मींस पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट. और लास्ट में वी हैव समथिंग कॉल्ड an amalgamation of two, which is perfect and continuous. So past perfect continuous, present perfect continuous, and in the end we have got future perfect continuous. नाम हो सकता है कि बड़े इंटिमिडेटिंग हो, बड़े टेंशन देने लायक हो, but don't worry at all, we'll keep it very simple. We'll try to understand what these tenses mean, how do you have to use them, and how do they distinguish from one from the other. All right, so we'll move ahead. Now, when we start learning about tenses, it is very important that we know what the verbs are. So as you all know, any action that we do is considered as a verb. जो भी हम action करते हैं उसको हम क्रिया बोलते हैं हिंदी में. तो मैं हिंदी में भी बात करूंगा आपसे, because the idea is to explain you the whole concept. तो आपको अगर लगे कि कुछ आपको इंग्लिश में बोलनी है, if you feel you are more comfortable in English, I would do it for you in English. Otherwise, I would route through Hindi as well. So कुछ verbs हम देख सकते हैं स्क्रीन पे. Basic verbs हैं to ask, then to bake, to clean, to dance, to expect, to fix, to greet. ये सारे verbs हैं. इन verbs को हम generally infinitive form में समझते हैं, देखते हैं, जिसके आगे हम to लगाते हैं इंग्लिश में. So to speak, to dance, to write, to sing, any verb that comes your way, you put to before that, और वो बन जाता है हमारा infinitive form. It is very important that we know different forms of verbs. When I say different forms, हमें पता होना चाहिए कि verb का second form क्या है, third form क्या है, ing form क्या है. ये जब हमें पता होंगे सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, तो विश्वास कीजिए हमारी जो सारी जर्नी है टेंसेस को लर्न करने की बहुत इजी हो जाएगी. सो इफ आई टोल्ड यू
The second form for the verb ask is asked. It is the same as the third form asked, and the ing form is ing you put along with that and it becomes asking. Bake का बन जाता है baked, baked and baking. Clean का बन जाता है cleaned, cleaned and cleaning. Dance का बन जाता है danced, danced and dancing. Expect का बन जाता है expected, expected and expecting. ये टेबल बड़ी सिंपल और इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें आप देख सकते हैं कि ना केवल हमारा सेकंड फॉर्म बल्कि हमारा थर्ड फॉर्म भी एक जैसा ही है. सो इट इज generally observed when you put ed in our main verb, it gets you the second form and the third form in a general way, but it is not always the case. पर ऐसा हमेशा नहीं है कि आप कोई भी वर्ब उठाएंगे उसमें ed लगाएंगे तो आपका सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा. ये एक स्पेसिफिक लिस्ट है. इस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम मिला है और ing लगाने पे आपको ing फॉर्म मिला है. इसको कैसे काम में लेना है, we'll see it. Let's move ahead. So as I was telling you, the simple rule is you put ed. आप ed लगा दीजिए वर्ब के अंदर तो आपका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको मिल जाएगा. ये सेकंड और थर्ड फॉर्म की अभी हम चर्चा करेंगे. We are going to talk about it in the course of this class because we'll be using those second forms and the third forms and the ing forms in making tenses. जब हम tenses बनाएंगे at that time we'll understand how we have to use the second form or third form or ing form for that matter. All right, moving ahead. As I was telling you, it's not always the case. हमेशा ऐसा आसान नहीं होगा काम कि हमें सिर्फ ed लगा के हमारा जो है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगा. कई बार ऐसे वर्ब्स भी आपको मिलेंगे जो जरूरी होंगे जिन्हें हमें सीखना होगा जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होगा. फॉर एग्जांपल टू बी बिकम्स वाज वर, इसका थर्ड फॉर्म बन जाता है बिन और थर्ड फॉर्म के बाद ing फॉर्म यदि हम देखें तो हो जाएगा बीइंग. इसी तरीके से टू बिगिन बिकम्स बिगैन, बिगन, बिगिनिंग. To break becomes broke, broken, breaking. To bring becomes brought, brought, bringing. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार ed जिनमें नहीं लगता है उनमें भी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म, सो आई वुड reiterate, उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं. फॉर एग्जांपल brought, brought. उसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पे to buy, bought, bought. So you have these kind of verbs which have their second and third form same even when it is not using ed. So the question arises, how do we remember this? इसे हम कैसे याद करें? The only rule is you have to remember the verbs in the infinitive forms, you have to remember their second forms, their third forms and their ing forms. यानी आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको याद रखना है, आपको सभी verbs को याद करना है. Of course, when I say सभी verb, आपको दुनिया भर के verbs की आवश्यकता नहीं है. These are the basic important verbs that you use in your daily activities, daily usage, daily conversations, and you'll be using those verbs. उन verbs का आपको second form, third form और ing form पता होना चाहिए. Let's move ahead. So once you have understood the second form, the third form and the ing form, then life becomes easy and we'll move ahead with our tenses now. So the rule says for making the third form and the second form, we generally add ed, but there are certain verbs, कुछ ऐसे verbs होते हैं जिनके अंदर हम ed नहीं लगाते हैं. They have to be learned with practice and they have to be memorized with passage of time. You will remember them. तो आप जैसे जैसे practice करेंगे वैसे वो सुधरते जाएंगे, आपको याद आते रहेंगे and you will enhance your vocabulary for that. अब हम जो सबसे पहला tense देखेंगे, that is the first one, which is very simple. It is called present tense. Right. So present tense is again subdivided. If you remember, we were talking about, हम बात कर रहे थे कि जो present tense है वो 4 categories में divided है. We have got simple present, then we have got present perfect, then we have got present continuous, and then we have got present perfect continuous. तो ये 4 tenses हैं present tense के जो हम देखेंगे आज. In the similar manner, we will see past tense and then future tense. So if I talk about present tense, simple present. So simple present is something which talks about some facts, some habits, some schedules. कुछ ऐसी चीजें जो फैक्ट्स हैं, जो होती हैं, जो आपका डेली रूटीन है, जो कुछ ट्रूथ है. फॉर एग्जाम्पल समवन वांट्स टू से आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ. ही प्लेज, वह खेलता है, वह खेलती है. शी प्लेज. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर सिंपल प्रेजेंट. इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. द क्वेश्चन arises, how do we make it? So it's a very simple form. What do? You take the verb. आप कोई भी verb उठा लीजिए. For example, the verb can be to sing. So when you use the verb to sing, it becomes I sing. In this case, you can see on the screen, I have taken the verb to eat. So ये हो जाएगा I eat, you eat, he eats, she eats,
it eats, we eat, and they eat. So the only change that you bring is with he, she, and it. You put an extra s. ये जो आप एक एक्स्ट्रा एस देख रहे हैं, ये हम जोड़ते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में. नाउ दिस इज द रेगुलर रूल. ये रेगुलर रूल है. कोई भी वर्ब आप उठाएंगे उसके साथ आप मेन वर्ब रखिए. आई, कोई भी वर्ब आप उठाएंगे उसके उसमें आप क्या कीजिए, आपको जो मेन आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच इज लाइक आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे, इसके साथ आपको उस वर्ब को रखना है. लेट्स से आई स्पीक, आई स्पीक, यू स्पीक, बट आपको ध्यान रखना है कि ही, शी और इट के केस में आपको एक्स्ट्रा एस लगाना है. सो ही स्पीक्स, she speaks, it speaks, we speak, and they speak. Again, you go back to this original verb. So it's very simple in English. You just have to put an extra s when it is with he, she, and it. Otherwise, you don't have to do any change. आपको कुछ change नहीं करना. आपको जो main verb है वो रखना है. Now comes exception. There are certain exceptions in English. यदि हमारा verb o में खत्म होता है, जैसे to go, to do. यदि हमारा verb double s में खत्म होता है, यदि हमारा verb us में खत्म होता है, for example focus, ch में खत्म होता है, sh में खत्म होता है, in that case you have to put an extra e and then an s in he, she and it. For example, I go, you go, but he goes, she goes, it goes, then we go and they go. तो आपने देखा है कि हमने अभी ऊपर आपको एग्जांपल जो दिया था eat का, उसके अंदर हमने देखा था कि we were just adding an s, but here when we see to go which ends with an o, here you would have to put he goes, she goes, and it goes. Similarly, to miss, I miss, you miss, but he misses, she misses, we miss, and they miss. And in the end, if I were to take push, I would do this way. I push, you push, he pushes, she pushes, it pushes, we push, and they push. So this is the rule that we apply in English in terms of conjugation of the verbs, especially in simple present tense, when the verbs they end with an o, double s, us, ch, sh. Now, moving ahead, there's also an exception. अगर हमारा verb y में खत्म हो रहा है, ध्यान रखिएगा, y में खत्म हो रहा है, उस केस के अंदर भी एक चेंज आएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा वर्ब है टू क्राई, टू स्टडी, टू फ्लाई, तब उस केस में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर जो कि ही, शी, इट है, उसके अंदर हमें IES लगाना होता है. राइट, इसमें सिर्फ ES लगाने से काम नहीं चलेगा. सो यू विल से आई क्राई, यू क्राई, ही क्राइज, शी क्राइज, इट क्राइज, वी क्राई, एंड दे क्राई. एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा इस चीज को. और लास्ट, अगर हमारा वर्ब y में खत्म हो रहा है, if the verb finishes with the y as a consonant but has a vowel just before it, अगर उसके पहले vowel लग जाता है, जैसे say, to say या to play, उस केस में आप ध्यान दीजिएगा कि हम जो एक IES है उसमें चेंज कर देंगे और सिर्फ हम s लगा देंगे. For example, you go back to the original form. You say, I say, you say, but he says, she says, it says. तो हमने क्या देखा? It was finishing with the y, but still you did not put an extra IES. You rather just put s. So ये हमें ध्यान रखना है कि हमको फिर रूल में चेंज करना पड़ेगा because it finishes with the vowel and I. Similarly, जो verb है play, I play, you play, but he plays, she plays, it plays, we play, and they play. This is our simple present tense. So present tense का जो रूल है वो बड़ा सिंपल था और हमने इस तरीके से देखा है. मैं वापस से रीइटरेट करता हूँ इस फैक्ट पे कि ये हमें बताता है वो चीजें जो रेगुलर वे में होती हैं. आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ. वीकेंड्स पे हम बाहर खाना खाते हैं. ऑन द वीकेंड्स वी ईट इन अ रेस्टोरेंट, सो वी ईट, हम खाते हैं. या वीकेंड पे वो लेट्स से वो I'm just trying to make a verb which is having a different ending. So वो पतंग उड़ाता है, right? On weekend he flies kites. He flies, FLIES, right? He flies. To fly verb है हमारा, तो हमको flies करना पड़ेगा. All right. Let's move ahead. Now, something very important and interesting is कि जो हमारा simple present tense होता है उसमें आप do लगाकर भी अपनी बात बोल सकते हैं. You might wonder, but हमें do लगाने की आवश्यकता क्या है? ये do इसलिए हमें लगाना आना चाहिए because when you will make negative sentences or you would go to interrogative जहाँ पे आप questions पूछेंगे, उस केस में हमें do की जरूरत पड़ेगी. तो बेहतर है कि हम इसको पहले ही समझ लें कि हम do के साथ भी अपनी बात को कह सकते हैं. So जब आप कहते हैं I eat, you eat, he eats, she eats,
we eat and then they eat. इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर, हम कह सकते हैं इसको I do eat, बिल्कुल मैं खाता हूं, you do eat, he does eat, she does eat, it does eat, और अंत में we do eat, और सबसे अंत में they do eat. So हमने क्या किया, हमने वर्ब में कोई चेंज नहीं लेके आए. We haven't brought any change into the verb. The verb stays in the original form. Eat, 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 eat. Everywhere it is eat. So we haven't put an extra s over here. We did not change it. What did we change? हमने यहाँ पे जो do verb है उसको insert किया है और हमारा sentence बन गया है I do eat, you do eat, he does eat, she does eat, it does eat, we do eat, और अंत में they do eat. ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप कहना चाहेंगे कि मैं लेट्स से आई ईट एन एप्पल in the morning, I eat an apple. So I eat an apple, I do eat an apple. Both the meaning is the same when you say I eat an apple or when you say I do eat an apple. The little difference that you find between, जो छोटा सा फर्क है, I eat an apple and I do eat an apple. When you say I do eat an apple, आप थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं इस फैक्ट पे, बिल्कुल हाँ बिल्कुल मैं खाता हूँ. You're trying to stress on the fact, but largely the meaning is same. So it's good that we learn I eat is an equivalent of I do eat, so that when we make the negative sentences or when we make the interrogative sentences, जो questions हम बनाएंगे तो हमारे को तब दिक्कत नहीं आएगी. यहाँ पे जो आपको बात ध्यान रखनी है वो है कि he, she और it के साथ हम does लगाते हैं. He does, she does and it does. All right, let's move ahead. Now when we make negative sentences, आपको do या does लगा के negative बनाना है. So if someone were to say, I'll take you to this point. Yeah, मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूँ. So this person says, I do not go to school every day. यहाँ पे ध्यान रखना है आपको. I do not go to school every day. He does not play in the park every Sunday. वो हर रविवार को पार्क में नहीं खेलता है. So हमने देखा था कि जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव बिना डू या डस के नहीं बन सकता. आप कभी भी नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट का जो नेगेटिव होगा वो कभी भी बिना डू और डस के नहीं बन सकता. सो यू विल ऑलवेज हैव टू यूज डू और डस. सो आई डू नॉट गो टू स्कूल या ही डज नॉट प्ले, दे डू नॉट वॉच मूवीज. इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न दैट व्हेनेवर यू से आई ईट, इट कैन आल्सो बी सेड, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं आई डू ईट. ही स्पीक्स English, he does speak English, so that we understand कि जब हम इसको नेगेटिव करेंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे he speaks English, he not speaks English, इसका कोई मतलब नहीं है. He speaks not English, कोई मतलब नहीं है. मतलब है he does not speak English. So आप ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव बनाने के समय आपको do या does की जरूरत पड़ेगी. So it's better that you start learning in the positive sense as well, ताकि जब आप नेगेटिव में जाएं या फिर इंट्रोगेटिव में जाएं तो आपको दिक्कत नहीं है. Alright, moving ahead quickly. So these are the negative sentences for simple present tense. So I will show you. I do not eat, इसका contraction होता है I don't eat. You do not eat, इसका contraction होता है you don't eat. He does not eat, he doesn't eat. She does not eat, she doesn't eat. It does not eat, it doesn't eat. We do not eat, we don't eat. और अंत में they do not eat बन जाता है they don't eat. और जैसा मैं आपको बता रहा था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप प्रश्न पूछेंगे तो उस केस के अंदर आपको हमेशा डू या डस पहले स्थान पे लेके आना. यू हैव टू ब्रिंग इट ऑन द फर्स्ट प्लेस एंड देन यू आस्क योर क्वेश्चन. डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, क्या तुम हर रोज स्कूल जाते हो? डज ही प्ले इन द पार्क एवरी संडे, क्या वो हर रविवार को पार्क में खेलता है? सो डू या डज आपको अगेन हेल्प करते हैं क्वेश्चंस बनाने में. एट द फर्स्ट प्लेस यू हैव टू इंसर्ट देम. लेट्स मूव अहेड. नाउ I will quickly tell you the to be verb in simple present tense. Why is it important to learn to be verb? Because हम जब present continuous देखेंगे तब हमें जरूरत पड़ेगी is am are की. तो जो to be verb होता है वो affirmative sense में जाता है. I am, you are, he is, she is, it is, we are, and then you all are, and then they are. इसका negative हम देखेंगे तो I am not, you are not, या you aren't, he is not, he isn't, we are not, we aren't, you are not, you aren't, और अंत में they are not, they aren't. और इसका अगर हमें इंट्रोगेटिव करना है तो am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. इस तरीके से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एक छोटा सा यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है ain't. हम देखते हैं कि जो नेगेटिव होता है कॉन्ट्रैक्शन में वो हो सकता है ain't. बट ain't अपने आप में एक अलग टॉपिक है. ain't जनरली हम इंग्लिश में स्लैंग की तरह काम में लेते हैं, which is not considered as academic or structured, but then people do use ain't. We can always delve into it in a detailed way. Right. So there's a little point coming in on the way. So I can't understand simple present. Yeah. So simple indefinite tense is the same as simple
present tense. So it's not indefinite because we haven't defined it completely. So it is the same as simple present tense. Yeah, Shubhashish, would you like to say something? Yes, sir. When we spoke about ain't, so just one thing, can we say like this that ain't is used typically for American English more than British English? Because I remember when I Yeah. was a child, I used to read a lot of mainly Tom Sawyer. I used to read, which is an American novel. Yes. So Right. over there, I observe the notice of ain't. Indeed, indeed. Yeah. So Yeah. you're So right. so is it like that that ain't is used more commonly in American English than British English? Can we Yes, consider it yeah, that way? yeah, you can say so. And again, adding on to that point, Shubhashish, it's more into the slang form of the word. Yeah, the So colloquial, the slang form. Yeah. the colloquial verb, yeah, the colloquial usage is that. Perfect. Right. Thank Again, you, sir. age is in itself is a complete different topic that we can delve into. So we would, one fine day we can take it up because ain't is a contraction not only of to be but also to have at times in English. So we have to see how to, navigate through that. Anyway, ain't पे हम Thank you, चर्चा sir. So this is a new thing that you have told, and I'll definitely do a small study on this. exactly. Yes, please do. I mean, ain't in itself is a topic to understand how you do it with to be and to have. तो ain't दोनों में चलता है to be and to have. इस पे ऊपर हम चर्चा And कर so सकते one more thing, this again came to mind. You can have another session on the colloquialism and the informal language. One session that will help us a lot to हैं. distinguish Yes, between the formal and the informal language. absolutely. Yes, we'll work on that as well. Thank you for All the right. idea, Thank you. Subhash. Thank you, Thank sir. you. All right. So we were looking at to be, and quickly I will also give you a little idea about to have. And why do we need to learn to be and to have at this point? क्यों हमें सीखना है to be and to have? Because ये दोनों जो verbs हैं to be and to have दोनों हमें help करेंगे tenses को build करने में. जब हम continuous की बात करेंगे तो हम use करेंगे जो verb है हमारा to be, और जब हम बात करेंगे perfect की तब हम बात करेंगे to have verb की. तो ये जरूरी है कि हम समझें to be verb को और to have verb को. So जो अभी हमने to be verb देखा था वो था आई एम, यू आर, ही इज, शी इज. आपको स्क्रीन पे फिर से दिखा देता हूँ. आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, वी आर, यू आर एंड दे आर. और यदि हम बात करें टू हैव वर्ब की, जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब है, उसकी हम बात करें तो इट गोज दिस वे: आई हैव, यू हैव, बट, ही हैज, शी हैज, इट हैज. और आगे हम देखेंगे वी हैव, यू हैव और अंत में दे हैव. ये दोनों वर्ब्स बहुत जरूरी हैं, टू बी एंड टू हैव इन प्रेजेंट टेंस. अपने आप में भी जरूरी है और ये दूसरे वर्ब्स की बिल्डिंग में भी काम आएंगे. सो वी विल सी दैट एज वेल. हम आगे बढ़ते हैं. नाउ कम्स द प्रेजेंट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस नाम देखते आपको पता चल जाएगा कोई चीज जो चल रही है, जो लगातार हो रही है. ये किस प्रकार से होगा? अब हमें काम में लेना पड़ेगा हमारा टू बी वर्ब. When we use the to be verb, that helps us to make the present continuous tense. And believe me, not just present continuous tense. ये सारे जो to be verb था हमारा, जब past में जाएगा तो हमारा हेल्प करेगा past continuous बनाने में, और जब वो future में जाएगा तो हम बनाएंगे हमारा future continuous. तो ये सारे जो tenses हैं जो continuous के होंगे वो हमारे to be verb के सहायता से होंगे. यानी हम उस to be verb का present form लेंगे या past form लेंगे या फिर हम लेंगे future form, और साथ में हमको आईएनजी फॉर्म लगाना है. तो अगर आपको याद है वो लिस्ट, मैं आपको फटाफट से, जो लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, मैं एक बार स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ. ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस लिस्ट के थ्रू हम देखेंगे कि जब कभी भी हम कंटिन्यूस वाली बात करेंगे, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंटिन्यूस टेंस, तो हम यूज करेंगे ये वाली लिस्ट. जो लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो आईएनजी फॉर्म वाली है, इस लिस्ट को हम काम में लेंगे. आस्किंग, बेकिंग, क्लीनिंग, डांसिंग, एक्सपेक्टिंग, फिक्सिंग, ग्रीटिंग, होपिंग, जंपिंग, किसिंग, लाफिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म. तो जब भी आपको कंटिन्यूस वर्ड याद आए तो आप याद कीजिएगा आईएनजी फॉर्म को. और जब कभी भी परफेक्ट काम आप कर रहे हैं, जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे या आप पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे या फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे, तो आप ये थर्ड फॉर्म काम में लेंगे, क्योंकि परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण हो जाना, खत्म हो जाना. इस पर हम और चर्चा करेंगे. मैं आपको फटाफट से आगे लेके जाता हूँ और आपको बताता हूँ जो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हम बात कर रहे हैं, राइट. सो एज आई टोल्ड यू, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हम टू बी वर्ब को काम में लेते हैं, विच इज आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, राइट. इस तरीके से हम लेंगे और साथ में हम आईएनजी को लगाएंगे. उदाहरण के लिए, मैं खाना खा रहा हूं, वो एक्शन चल रहा है. तो जिस तरीके से आप नाम में देख सकते हैं कि प्रेजेंट है और एक्शन चल रहा है, तो दैट बिकम्स आई एम ईटिंग फूड. शी इज स्टडिंग, वो पढ़ रही है. इसकी जो स्ट्रक्चरिंग है वो बड़ी सिंपल है. आप एम इज आर काम में लेते हैं और आप आईएनजी फॉर्म लगा लेते हैं उस वर्ब के साथ जो भी आप वर्ब कर रहे हैं, करने की प्रक्रिया में है. और यदि आपको नॉट करना है, यानी आपको नेगेटिव बोलना है, तो आप
उसका नेगेटिव करेंगे जो हमने लिस्ट में देखा था, आई एम नॉट, शी इज नॉट, दे आर नॉट। सो मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड, वो पढ़ नहीं रही है, शी इज नॉट स्टडिंग और शी इज नॉट रीडिंग, और अंत में वे खेल नहीं रही हैं, सो यू वुड से दे आर नॉट प्लेइंग। सो आप इस तरीके से नॉट लगाकर भी उसको नेगेटिव के अंदर बना सकते हैं। नाउ इफ वी वर टू डू द इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, यदि मुझे पूछना है तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं सबसे फर्स्ट प्लेस पे ले आऊंगा हमारे टू बी वर्ब के उस कंपोनेंट को। सो एम आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा हूँ? इज शी रीडिंग, क्या वो पढ़ रही है? आर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे हैं? तो हम देख सकते हैं कि हम फर्स्ट प्लेस पे लेके आ जाते हैं हमारे टू बी वर्ब को, और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन बना सकते हैं कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर। सो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा और कंटिन्यूस होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि ये विशेष रूप से बताने के लिए है कि इस क्षण, राइट नाउ, मैं इस समय पुस्तक पढ़ रहा हूं, वे अभी खेल रहे हैं। सो यू वुड से आई एम रीडिंग अ बुक राइट नाउ, आई एम रीडिंग अ बुक एट द मोमेंट, या फिर दे आर प्लेइंग राइट नाउ, या फिर दे आर प्लेइंग एट द मोमेंट, इस तरीके से। आगे हम बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप याद कीजिए, जब मैंने आपको कहा था परफेक्ट, परफेक्ट का नाम याद आते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो जो एक्शन है वो पूर्ण हो चुका है, इट इज कंप्लीट, इट इज ओवर, राइट, इट इज फिनिश्ड। सो हाउ डू यू डू दैट? इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, आपको थर्ड फॉर्म काम में लेना है, और थर्ड फॉर्म के साथ आपको टू हैव वर्ब काम में लेना था। तो अगर आप याद करेंगे, हैव वर्ब जो हमने देखा था वो था आई हैव, यू हैव, बट ही हैज, शी हैज, इट हैज, और फिर अगेन वी हैव एंड दे हैव। अगर आपको ये अच्छे से याद है टू हैव वर्ब, तो उसके साथ आप काम मिलेंगे हमारा थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आप याद कीजिएगा जो हमने देखा था हमारी लिस्ट के अंदर, लिस्ट में हमने देखा था। तो हम आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए आपको कहना है मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, उसने किताब पढ़ ली है, शी हैज रेड द बुक। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप हमेशा इस सेंटेंस को या इस टेंस को जब बोलते हैं तो आप प्रेजेंट तक आते हैं, यानी आपका असर वर्तमान में होता है। किसने पूछा आपने खाना खा लिया है? हाँ मैंने खाना खा लिया है। मैंने टीवी देख लिया है, मैंने किताब पढ़ ली है। सो आप ये है लगाते हैं, which shows that you are trying to show that the action has gotten over in this present point। तो अब ये present point में एक्शन खत्म हो गया है, तो इसलिए हम इसको है लगाते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम लगाते हैं I have eaten, she has understood, they have spoken। तो आप to have verb लगाइए और थर्ड फॉर्म को लगा दीजिए। बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि समय सारणी पे, समय सीमा पे आपको ये बताना है कि इस एक्शन का जो खत्म होने का जो इम्पैक्ट है वो वर्तमान में आके खत्म होता है, फिनिशेस इन द प्रेजेंट स्टेट। दैट मींस इट हैज जस्ट गॉटन ओवर। सो इसीलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट क्यों? क्योंकि प्रेजेंट तक आया है ट्रैवल करके, और परफेक्ट क्योंकि ये खत्म हो चुका है, इट्स नॉट कैरिंग ऑन। ऑलराइट, we'll quickly move ahead. I'll take up all your questions if at all you will have any. Then let's look at the structuring. So as I mentioned to you, structuring is very simple. आपको I, you, he, she, we, they, जो भी आपका subject pronoun है उसको लेना है, और उसके साथ आपको have या has लगाना है, और थर्ड फॉर्म को लगा देना है। अगर हमें इसके नेगेटिव करना है तो have, has के साथ not लगाना है, तो I have not, या फिर he has not। तो आप देख सकते हैं I have not finished my work, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। He has not eaten food, उसने खाना नहीं खाया है। We have not watched the movie, हमने फिल्म नहीं देखी है। और यदि मुझे प्रश्न पूछना है तो अगेन द सेम रूल, इट सेज कि आपको पहले स्थान पे हैव या हैज लगाना है, फिर अपना डूअर जो भी व्यक्ति है जो एक्शन कर रहा है, और अंत में आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। उदाहरण के लिए, हैव आई फिनिश्ड माय वर्क, मैं हैरानी से पूछ सकता हूँ क्या मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। हैज ही ईटन फूड, क्या उसने खाना खा लिया है। हैव वी वॉच्ड द मूवी, क्या हमने फिल्म देख ली है। तो हम इस तरीके से अपने सेंटेंसेस को क्वेश्चन फॉर्म में डाल सकते हैं इन प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, मूविंग अहेड। एक और टेंस है हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? बड़ा आपको नाम देख के ऐसा लगेगा पता नहीं इसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं। तो देखिए बिल्कुल इसमें प्रेजेंट यानी ये वर्तमान तक आएगा, परफेक्ट इसमें कुछ चीज पूरी हो जाएगी, कंटिन्यूअस इसमें कोई चीज चल रही होगी, और ये टेंस है। सो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा तो ऐसा कैसा हो सकता है संभव ये कि कोई चीज है जो खत्म भी हो चुकी है, जो चल भी रही है, और जो वर्तमान तक आ रही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसका कंस्ट्रक्शन है, और इसका मीनिंग है आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से लगातार पढ़ता आ रहा हूँ। ये इसका शाब्दिक अनुवाद है, लिटरल ट्रांसलेशन। बट इन हिंदी यू वुड सिंपली से मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो आप प्रश्न पूछ सकते हो तो हम इसको ये क्यों नहीं बोलते आई एम स्टडिंग,
जब आप कहते हैं ना आई एम स्टडिंग, तो उस केस में आप पास्ट में इतना ज्यादा फोकस नहीं करते। लेकिन जब आप ये कहते हैं आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, इसमें आप ये स्पष्ट बताना चाहते हैं कि आप लगातार 2 घंटे से पढ़ते आ रहे हैं। तो उस केस में हम हैव या हैज लगाते हैं। बिन लगाएंगे क्योंकि ये हमारे को एक ड्यूरेशन दर्शाएगा, कंटिन्यूटी दिखाएगा। और हमने जैसे बात की कि इसमें आईएनजी हम लगाते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, तो स्टार्टिंग आ जाएगा। मैं इसका आपको कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ। इसका कंस्ट्रक्शन होगा, सब्जेक्ट लेना है आपको, हैव या हैज लगाना है, बिन लगाना है और आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो उदाहरण के लिए, मैं 2 घंटे से पढ़ता आ रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं बोलते हिंदी में भी, हम ये बोलते हैं मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। बट अगर आपका सेंस ये है कि मैं 2 घंटे से लगातार पढ़ता आ रहा हूँ, पढ़ती आ रही हूँ, तो आप कहेंगे आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वो सुबह से गाना गाती जा रही है, गाना गाती आ रही है, या सिंपली वो सुबह से गाना गा रही है, तो आप कहेंगे शी हैज बिन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। वो 1 हफ्ते से लगातार काम कर रहे हैं, दे हैव बीन वर्किंग फॉर अ वीक नाउ। इस तरीके से हम ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है वो बना सकते हैं। इसमें प्रेजेंट का आई होप आपको फील क्लियर हुआ होगा कि हम इसमें वर्तमान तक ट्रैवल करके पहुंचे हैं, इसलिए हमने इसको प्रेजेंट का नाम दिया है। आगे हम देखते हैं, यदि हमें इसे नेगेटिव करना है तो आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं लगातार 2 घंटे से नहीं पढ़ता आ रहा हूँ। शी हैज नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं गाती आ रही है। दे हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर अ वीक, वो 1 हफ्ते से काम नहीं करते आ रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा इसको हिंदी में डिफरेंटली इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इसका फील समझ सकें कि ये क्या कहना चाहता है ये टेंस। ऑफ कोर्स आप इसको हिंदी में बहुत सिंपली कह सकते हैं, वे 1 हफ्ते से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे 1 हफ्ते से लगातार काम करते नहीं आ रहे हैं। दैट इज व्हाट द रियल सेंस इज, बट यू वुड से इट इन डिफरेंट वे इन हिंदी। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंस में डालना है तो हम इसको बोलेंगे हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से लगातार पढ़ता आ रहा हूँ। हैज शी बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से गाती आ रही है। बट ऑफ कोर्स आई विल रीइटरेट ऑन द फैक्ट कि हम ऐसे हिंदी में नहीं बोलते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं क्या वो सुबह से गा रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ हिंदी में, ताकि आप उसका जो सेंस है उसको समझ सकें। या अंत में, हैव दे बीन वर्किंग फॉर अ वीक, क्या वो 1 हफ्ते से काम करते आ रहे हैं, या फिर क्या वो एक काम कर रहे हैं। दिस इज हाउ यू वुड से simply in Hindi. All right. Moving ahead. Let's go to past tense now. अब past tense में again हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं। तो हमने देखा है कि past tense में हमारे पास हो जाएगा simple past, past continuous, past perfect, और चौथा हमारे पास हो जाएगा past perfect continuous tense. So ये 4 टेंसेस हम देखेंगे past tense के अंदर। तो आगे बढ़ने के लिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे जो हमारा सिंपल पास्ट है। नाउ सिंपल पास्ट एज द नेम सजेस्ट इट्स वेरी सिंपल। इसमें आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपको सेकंड फॉर्म लगाना है साथ में। द मोमेंट यू ऐड सेकंड फॉर्म यू गेट योर सिंपल पास्ट। तो अगर आप सेकंड फॉर्म को याद करना चाहें तो मैं आपको फटाफट से स्क्रीन पे दिखाता हूं हमारी जो शुरुआत वाली टेबल थी जो हमने देखी थी। इस टेबल को यदि आप देखेंगे, ये टेबल आपको याद करनी है। अगर आपको याद होगा जब स्कूल के दौरान हम अंग्रेजी पढ़ते थे तो हमें हमारे अंग्रेजी के शिक्षक हमें कहते थे वो टेबल को याद कर लो। टू ईट वर्ब है तो ईट, एट, ईटन, सिंग, सैंग, संग, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो इस तरह की जो हमारी टेबल्स जो होती थी वो हमें याद रखनी है ताकि हम सही जो वर्ब है उसका फॉर्म काम में ले सकें। तो जब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट की, तो सिंपल पास्ट में हमें सिंपली बहुत आसानी से सेकेंड फॉर्म को लगाना होता है, जैसे ब्रोक, ब्रॉट, चोज, ड्रोव, एट, फाउंड, फ्लू, गेव। तो मैं आपको लेके चलता हूं सिंपल पास्ट की स्लाइड पे। So, if you see this one, right? So, if you see this one, it says, I went to the market. So, I went to the market, which means मैं बाजार गया। ये एक्शन पास्ट में खत्म हो चुका है, इसका वर्तमान तक आकर कोई इंपैक्ट नहीं है। There is no impact of this action on the present. इसलिए ये अलग है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट से। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं तो हम कहते हैं आई हैव ईटन, मैंने खा लिया है। लेकिन जब आप सिंपल पास्ट काम में लेते हैं तो आप कहते हैं आई एट, मैंने खाया। अब मैंने खाया तो वो पास्ट में है, उसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। यस्टरडे आई एट एन एप्पल, कल मैंने एक सेब खाया, राइट? तो दैट डजंट शो द कनेक्शन विद द प्रेजेंट सिचुएशन, सो दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट। इसका बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको सब्जेक्ट को लेना है और आपको पास्ट फॉर्म उठाना है जो हम लिस्ट में से उठा लेंगे। सिंपली कुछ उदाहरण है, आई रेड अ बुक यस्टरडे, मैंने कल एक किताब पढ़ी। ही प्लेड इन द पार्क, वह कल पार्क में खेला। वी वेंट टू वॉच अ मूवी, हम कल फिल्म देखने गए।
यदि हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो याद रखिएगा कि हमें इसके नेगेटिव को बनाने के समय हमें डिड की आवश्यकता पड़ेगी। जिस तरीके से हमको डू या डस की आवश्यकता पड़ती है प्रेजेंट टेंस में, उसी प्रकार से हमें डिड की आवश्यकता होती है। तो मैं पहले फटाफट से आपको एक बार डिड का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं ताकि आप समझ सकें। जो डिड का कॉन्सेप्ट है ये पास्ट टेंस बनाने के केस में आता है। फॉर एग्जांपल आपको कहना है आई एट, इसका एक और तरीका है बोलने का, आई डिड ईट, यू डिड ईट, ही डिड ईट, शी डिड ईट, इट डिड ईट, और अंत में वी डिड ईट एंड दे डिड ईट। सो डिड लगा के भी आप उस मेन वर्ब को रखिए बिना उसमें कोई परिवर्तन करे। द वे यू डिड नॉट चेंज व्हेन यू यूज्ड डू और डज, उसमें भी कोई चेंज नहीं किया था। इसी प्रकार से आप डिड को काम में लेते समय भी कोई चेंज नहीं करेंगे। सो आपका अंग्रेजी में हो जाएगा आई डिड ईट, व्हिच मींस आई एट, यू डिड ईट, यू एट, ही डिड ईट, ही एट, शी डिड ईट, शी एट, it did eat, it ate, we did eat, we ate, और अंत में they did eat, they ate। तो ये हमारा did के साथ होगा। हमको did क्यों सीखना जरूरी है? ताकि हम इसके जब नेगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव बनाए तो हमारे लिए आसान रहे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बात बहुत कंफर्म है कि आप I ate का नेगेटिव I not ate या I ate not कभी नहीं बोलेंगे अंग्रेजी में। So you would use did। तो आपको क्या करना है, आपको did लगाना है और आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे I did not, आई डिड नॉट। एक बात ध्यान रखिएगा, डिड लगाने के बाद हमें हमेशा प्रेजेंट जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है वर्ब का वो लिखना होता है, which is like the original form। So I did not read a book yesterday, he did not play in the park, we did not go to watch a movie। So ये हमने जैसे डिड लगाया तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे ओरिजिनल फॉर्म रखना है वर्ब का, और हमें इसमें प्लेड या फिर थर्ड फॉर्म वॉच्ड या फिर रेड नहीं लिखना है। ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज द मोमेंट यू एड डिड इट गोज बैक टू द प्रेजेंट ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हो गया नेगेटिव में। एंड इफ यू टॉक अबाउट द क्वेश्चन मेकिंग, इन दैट केस यू वुड यूज डिड, यू स्टार्ट विद डिड। सो डिड आई रीड अ बुक यस्टरडे, क्या कल मैंने किताब पढ़ी? डिड ही प्ले इन द पार्क, क्या वो कल पार्क में खेला? और अंत में डिड वी गो टू वॉच मूवी, क्या हम कल फिल्म देखने गए? सो इस तरीके से आप बना सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस, राइट। अगर हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस की, तो उसके अंदर वी हैव टू इंश्योर दैट वी वुड यूज समथिंग व्हिच इज to be as a verb and it goes with was and were। आपको was और were काम में लेना है, और was और were के साथ आपको ing फॉर्म लगाना है। मैं आपको क्विकली स्क्रीन पे दिखाता हूँ। I'll take all the questions in the end, right, so that I can quickly explain everything and I'll take all the questions at the end। So was और were आपको काम में लेना है, and you have to use ing form। Why? Because it is continuous। So I was writing a story, मैं एक कहानी लिख रहा था। He was watching television, वो टीवी देख रहा था। They were playing, वे खेल रहे थे। And if you have to make negative of past continuous, you would say, I was not writing a story, he was not watching television, and they were not playing। तो आपको was not या wasn't या were not या weren't काम में लेना है। और यदि हम बात करें इंट्रोगेटिव की, तो उस केस में हमें पहले स्थान पे was या were लगाना है। Was I writing a story? Was he watching television? Were they playing? इस तरीके से हम इसका क्वेश्चन फॉर्मेशन बना सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का, right? So past continuous is something that happens in past and it was continuing at that point of time, but we are not sure if it's still carrying on or not, but at that point of time it was happening। वो उस समय तो चल रहा है, तो for sure है। और अगर हम बात करें past perfect tense की, यानी past के अंदर हम बात कर रहे हैं, यानी हम एक एक्शन को खत्म करवाने की बात कर रहे हैं लेकिन पास्ट में। तो पास्ट में जब एक्शन खत्म होता है तो हम बोलते हैं आई हैड ईटन फूड, मैंने खाना खाया था या मैंने खाना खा लिया था। I had read the book, sorry, he had read the book, उसने किताब पढ़ ली थी, उसने किताब पढ़ी थी। तो हिंदी में यदि आप जोड़ना चाहें, अगर आप हिंदी फोन है, हिंदी आपको समझ में आती है अच्छे से, सो आप था या थी करके जो बात करते हैं वो जनरली हम पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाते हैं। उसके अंदर हम बताते हैं इसको। सो हैड हम लगाते हैं इसमें और हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सो इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। आप सब्जेक्ट नाउन लेते हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, और हैड लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सो जब मैं पहुंचा वे जा चुके थे, when I arrived they had already left, या फिर उसने अपना काम पूरा कर लिया था, he had finished his work, या अंत में हमने फिल्म देखने से पहले खाना खा लिया था, we had eaten before watching the movie। तो इस तरीके से हम हमारा पास्ट परफेक्ट बना सकते हैं। और अगर हमें इसका नेगेटिव करना हो तो had not या hadn't, when I arrived they had not left, he had not finished his work, या अंत में we had not eaten before watching the movie। And if we have to make the interrogative sentences, so we would put had in the first place। So हमारे questions बन जाएंगे, had they left when I arrived? Had he finished his work? Had we eaten before watching the movie? तो ये आप सारे जो questions हैं वो आप बनाते हैं had को first place पे लगाकर। ये ऐसा एक tense है जो
पास्ट ऑफ पास्ट भी कहलाया जाता है क्योंकि ये बहुत पहले टाइम में पाया जाएगा। यानी मैं बहुत पुरानी बात करूंगा तो मैं पास्ट परफेक्ट को लगाऊंगा, जिसमें हिंदी में मैं इस प्रकार से कहूंगा कि सन 2013 में मैं दिल्ली गया था, सन 2017 में मैंने इस प्रकार का पिज्जा खाया था। सो ये जो था या थी या थे, इस प्रकार की जो एंडिंग्स होती हैं, दैट शोज इट्स पास्ट ऑफ पास्ट व्हिच इज पास्ट परफेक्ट टेंस। और कई बार इसमें और क्लैरिटी लाने के लिए, क्लैरिटी देखने के लिए हम इसके अंदर एक और टेंस ऐड कर देते हैं। यानी एक एक्शन जस्ट हुआ है और उसके पहले एक एक्शन हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, दे हैड लेफ्ट, वो जा चुके थे। तो इस तरीके के हम दो एक्शंस को दिखाते हैं। यानी एक एक्शन सिंपल पास्ट में खत्म होता है, लेकिन उससे पहले जो एक्शन हो चुका होता है वो पास्ट ऑफ पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट में होता है, राइट? ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस हमने देखा था, लेकिन अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर थोड़ी सा मैं फिर से क्लैरिटी देना चाहूंगा कि पास्ट है, परफेक्ट यानी एक्शन पूरा हो चुका है, कंटिन्यूअस यानी चल भी रहा है और पास्ट में है। तो इसको अगर समझने का आप थोड़ा सा एफर्ट करें तो आपको पता चलेगा कि हम किस टाइम स्केल में सिचुएटेड है, हम पास्ट में सिचुएटेड है। यानी ये एक्शन पास्ट में इसकी बात है, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये एक्शन चला, डेफिनेटली इसकी ड्यूरेशन थी, लेकिन ये अब खत्म हो चुका है। यानी इसकी एक अवधि हम दिखाएंगे कि ये चल रहा था, लेकिन अब इट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर, एंड इट ऑल हैपेंस इन द टाइम स्पैन ऑफ पास्ट ब्लॉक। अगर हम समय को 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करें, पास्ट ब्लॉक एंड प्रेजेंट ब्लॉक एंड फ्यूचर ब्लॉक, तो ये पास्ट के ब्लॉक में है, राइट? तो इसको हम किस तरीके से देखेंगे, हम इसमें लगाते हैं हैड बिन आईएनजी। हैड लगाना है, बिन लगाना है और आईएनजी लगाना है। उदाहरण के लिए, आई हैड बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, पढ़ता आ रहा था। पढ़ता आ रहा हूं नहीं है, पढ़ता आ रहा था। यानी मेरी बात पास्ट के अंदर बताई जा रही है कि वो उसकी ड्यूरेशन चली और वो पास्ट के अंदर चली, एक ड्यूरेशन थी लंबी 2 घंटे की। तो इट शोज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक और हम एग्जांपल देख सकते हैं, शी हैड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से गाना गा रही थी, वो सुबह से गाना गाए जा रही थी। यानी वो जो एक्शन था उस चीज के होने का, वो पास्ट में था और वो चला और वो खत्म हो गया, पर उसकी ड्यूरेशन थी। सो दिस इज हाउ यू वुड यूज। I would give you some structuring of this. It goes with had been plus ing form. इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। He had been reading for an hour when I saw him. वो 1 घंटे से लगातार पढ़ता आ रहा था जब मैंने उसे देखा। लेकिन हम हिंदी में ऐसे कभी नहीं बोलते, हम बोलते हैं मैंने जब उसे देखा ना वो 1 घंटे से पढ़ रहा था। आप डेफिनेटली ये बोलेंगे, बट अगर आप इसका रूप, इसका कंस्ट्रक्शन समझना चाहें तो इट बेसिकली सेज कि वो लगातार 1 घंटे से पढ़ता आ रहा था। He had been reading or he had been studying for an hour when I saw him. So this is how you would say. I will say it in English, but of course, if it makes sense for you, then it's good. So it talks about a past time, phase wherein something happened for a duration, but it doesn't. It got finished over there, and it has got no impact on the present situation. So you would say he had been reading for an hour when I saw him. So जब मैंने उसे देखा, वो 1 घंटे से लगातार पढ़ता आ रहा था. They had been playing football for 3 hours when it started raining. So when it started raining, जब बारिश हुई या बारिश होना चालू हुई उसके पहले, they were playing continuously for 3 hours. So they had been playing for 3 hours. Yani this shows something that happened in past. It lasted for some time, and it doesn't spill over present. It finished over there. या फिर I had been working there for 2 years when the company closed down. So जब कंपनी बंद हुई उसके पहले मैं 2 साल तक लगातार वहां काम करता आ रहा था. So that is past perfect continuous tense. All right, and to make negative out of it, you would be using had not been. So he had not been reading for an hour when I saw him. वो 1 घंटे से लगातार नहीं पढ़ता आ रहा था जब मैंने उसे देखा, राइट? सो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं नेगेटिव के अंदर। और अगर हम क्वेश्चन मेकिंग करेंगे तो हैड के साथ हम बनाएंगे, हैड ही बीन रीडिंग फॉर एन आवर व्हेन यू सॉ हिम, क्या वो लगातार 1 घंटे से पढ़ता आ रहा था जब तुमने उसे देखा? सो हैड ही बीन रीडिंग और स्टडिंग। सो इस तरीके से हम हैड के बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन और बिन प्लस आईएनजी लगाते हैं, हम इसका इंट्रोगेटिव व्हिच इज क्वेश्चन मेकिंग बनाते हैं, राइट? सो ये जनरली आई विल रीइटरेट ऑन द फैक्ट कि ये जनरली हमें दिखाता है ऐसा एक फॉर्मेशन जो पास्ट के अंदर चला
और पास्ट के अंदर ही वो खत्म हो गया, लेकिन वो चला, उसकी एक ड्यूरेशन थी, उस ड्यूरेशन को दर्शाने के लिए, समझाने के लिए वी यूज continuous as a word. All right, moving ahead. We'll quickly jump on to the future tense. Future tense is something that happens in future, जो अभी तक हुआ नहीं है. इसके भी 4 फॉर्म्स हैं. आपके पास सिंपल फ्यूचर है, आपके पास है फ्यूचर कंटिन्यूअस, आपके पास है फ्यूचर परफेक्ट और अंत में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो बड़ा सिंपल सा है इसका रूप. इफ आपको विल लगाना है, विल और वर्ब का बेस फॉर्म यानी मेन फॉर्म लगाना है. तो आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा. ही विल क्लीन द हाउस, वो घर साफ करेगा. वी विल वॉच द मूवी, हम फिल्म देखेंगे. और अगर नेगेटिव करना है तो हम इसमें नॉट लगा देंगे. आई विल नॉट गो टू स्कूल, ही विल नॉट क्लीन द हाउस, वी विल नॉट वॉच द मूवी. अगर हमें इसको क्वेश्चन बनाना है तो हम विल को पहले स्थान पे ले आएंगे और हम हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन को सेकंड प्लेस पे ले आएंगे, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा इस तरीके से. विल आई गो टू स्कूल टुमारो, विल ही क्लीन द हाउस, विल वी वॉच द मूवी. सो हम विल को फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं, वी पुट विल ऑन द फर्स्ट प्लेस एंड दैट इज हाउ वी मेक अ क्वेश्चन आउट ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. If I talk about future continuous is, याद कीजिए, ing is going to be there because it is continuous, and since it is simple, as in it is simple continuous, it's not a perfect continuous, so it is going to take the verb to be in future tense. हमने देखा है whenever we have talked about present continuous or past continuous or future continuous, we have talked about to be verb. हमने to be verb हर जगह काम में लिया है और उस to be verb को हमने present में रखा. हमने लिया था इज एम आर, या फिर हमने लिया था वॉज वर पास्ट के केस में, या फिर हमने यहाँ पे हमने देखा है कि हमने फ्यूचर के अंदर उसको लिया है विल बी, तो हम विल बी के फॉर्म में उसको रखेंगे और हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे. सो आई विल बी राइटिंग द स्टोरी, शी विल बी वॉचिंग टीवी. ये इस तरीके की चीजें जो भविष्य में होगी और कंटिन्यू चलेगी. जनरली हम इसको इस प्रकार से हिंदी में भी नहीं बोलते, मैं कहानी लिख रहा होऊंगा, वह टीवी देख रही होगी. हम लोग सिंपली हिंदी में बोलते हैं मैं कहानी लिखूंगा, वह टीवी देखेगी. दैट्स हाउ वी से इट इन सिंपल फ्यूचर टेंस. बट इट डज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है फ्यूचर कंटिन्यूअस. तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको टू बी वर्ब का फ्यूचर फॉर्म लेना है which is will be. So I will be writing a story. किसने पूछा आप लिखोगे क्या कहानी? Yes, I will be writing a story. Instead of saying I will write a story, I will be. आप फ्यूचर में ले जाके उस एक्शन को दिखाते हो, दर्शाते हो, उसकी कंटिन्यूटी बताते हो. That is a way to express. Moving ahead. The construction is very simple. You will be using, I'll just take you back to the construction. So it is will be and negative will be will not be. So I will not be watching the movie at this time tomorrow. कल मैं इस समय फिल्म नहीं देख रहा होऊंगा. हम सिंपली बोलते हैं हिंदी में कल मैं इस समय फिल्म नहीं देखूंगा. But देख रहा होऊंगा shows the duration. Even in Hindi we have made it easier. We have less complicated, I would say. So I will not be watching the movie at this time tomorrow is what you would say in English. अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में लेके जाएं यानी क्वेश्चन फॉर्म में, तो हम बोलेंगे विल यू बी वॉचिंग द मूवी एट दिस टाइम टुमारो, क्या कल तुम इस समय टीवी देख रहे होगे, इस तरीके से. लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते हिंदी में, हम बोलते हैं क्या तुम कल इस समय टीवी देखोगे. दैट्स हाउ you would say. But in English you have will you be watching the movie at this time tomorrow. अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की. फ्यूचर परफेक्ट यानी याद कीजिए फ्यूचर में उस एक्शन को खत्म कर देना है. द मोमेंट आई से परफेक्ट, आपके दिमाग में आना चाहिए परफेक्ट यानी एक्शन ओवर हो गया है, action is done. Whenever we talked about present perfect or we talked about past perfect or right now we are talking about future perfect, perfect shows that the action is over, action is done, is finished, it's complete, right? How do you do? It's very simple. You would be using have, but since it is future तो आपको will लगाना पड़ेगा. So I will have eaten the food. और आपको याद है परफेक्ट में जैसे मैं कहता हूँ कि एक्शन खत्म हो चुका है तो आप कौन सा फॉर्म काम मिलेंगे वर्ब का? थर्ड फॉर्म. ये फिक्स्ड है. कंटिन्यूस में ing फॉर्म और परफेक्ट के अंदर हमारे को काम में लेना है थर्ड फॉर्म. और एक और बात ध्यान रखिए, जब भी कंटिन्यूस की बात करेंगे तो टू बी वर्ब काम में लेंगे, और जब कभी भी हम परफेक्ट की बात करेंगे तो हम टू हैव वर्ब को काम में लेंगे. ये बहुत एक स्पष्ट बात आपके दिमाग में होनी चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे आपको पढ़ते समय, लिखते समय या बोलते समय या कुछ भी आप कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्लैरिटी रहनी चाहिए. सो फ्यूचर परफेक्ट, भविष्य में आप चले गए बातों ही बातों में और उस एक्शन को खत्म करवा दिया भविष्य में प्रेजेंट में रहते हुए. सो आई विल हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका होऊंगा, मैंने खाना खा लिया होगा. Tomorrow at this time she will have read the book. कल इस समय तक वो ये किताब पूरी पढ़ चुकी होगी. Right?
या उसने कल इस समय किताब पढ़ ली होगी, ऐसा आप कुछ बोलेंगे हिंदी में, which in English will translate as she will have read the book, right? तो यानी आप वर्तमान में रह के फ्यूचर की बात आप कर रहे हैं और उस फ्यूचर के एक्शन को आप खत्म भी कर देते हैं बातों ही बातों में। जैसे कल शाम को 5 बजे तक आप दिल्ली पहुंच चुके होंगे। Tomorrow at 5 you will have reached Delhi. Tomorrow at 5 you will have reached Delhi. यानी आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, but you have already told this person that you will have reached Delhi. आप दिल्ली पहुंच चुके होंगे. You are being very sure of it. या फिर after this class, I'm being very hopeful. After this class, you will have understood. आप समझ चुके होंगे. After this class, you will have understood the concept of tenses in English, right? So this is one of the ways. And how do you do that? आप subject लगाते हैं, will have लगाते हैं और आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये हमारा परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस के अंदर आपको समझना है कि आपको हमेशा हैव लगाना है और साथ में थर्ड फॉर्म लगाना है। यदि हम इसका नेगेटिव देखें तो विल नॉट हैव, सो आई विल नॉट हैव वॉच्ड दैट मूवी। मैं नहीं देख चुका हूँ फिर कल तक तो, क्योंकि बहुत काम है मेरे पास, राइट? व्हाट एवर द रीजन इज। या फिर दे विल नॉट हैव फिनिश्ड देयर वर्क, या अंत में वी विल नॉट हैव हैड टी बाय द टाइम यू अराइव। We will not have had tea by the time you arrive. यानी कि जब तक तुम आओगे ना तब तक हम चाय नहीं पी चुके होंगे। यानी हम तो चाय तुम्हारे साथ ही पियेंगे, हम चाय आपके साथ पियेंगे। So this shows that we will not have had tea. So will not have हो गया हमारा will और have not के साथ, और had हमने वापस इसलिए काम में लिया है क्योंकि हमने to have verb का थर्ड फॉर्म लिया है, which in this case is again had. So we will not have eaten, we will not have spoken, we will not have taken, or we will not have had tea by the time you arrive. अगर हम इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो will you have watched that movie? क्या तुम इस फिल्म को देख चुके होगे? Will they have finished their work? क्या वो अपने काम को खत्म कर चुके होंगे? लेकिन हम हिंदी में बोलते हैं क्या वो अपना काम खत्म कर लेंगे कल तक? इस तरीके से हम बोलते हैं, but you have to be very clear with English. Alright, जो आखिरी हमारा टेंस है बड़ा इंटरेस्टिंग सा टेंस है, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी फ्यूचर में जाना है, उस एक्शन को चलाना है लंबा और उसको खत्म भी कर देना है। तो इसका कंस्ट्रक्शन होता है विल हैव, और याद कीजिए अगर परफेक्ट और कंटिन्यूअस है तो बिन और आईएनजी आएगा। आई विल हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 hours। बड़ा अटपटा सा एक टेंस है। इंग्लिश पीपल जो अंग्रेजी बोलते हैं, इवन दे डू नॉट यूज इट क्वाइट ऑफ्टन। इट्स अ वेरी रेयरली यूज्ड, बट यू शुड नो व्हाट दिस टेंस इज एंड हाउ इट मेक्स सेंस। सो आई विल हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 hours। तो आप फ्यूचर में जाइए, फ्यूचर में एक समय अवधि को पकड़िए, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 साल, 2 साल, जो भी आपकी ड्यूरेशन है उस को करने की, और बताइए कि वो एक्शन खत्म हो चुका है। उदाहरण के लिए, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, यानी मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। टुमारो शी विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। वो कल सुबह से दैट इज समथिंग दैट शोज कि वो सुबह से गा रही होगी। इसका कंस्ट्रक्शन है, आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन काम में लेना है, यानी आपको सब्जेक्ट काम में लेना है, और आपको विल हैव बीन भी काम में लेना है, और साथ में आपको आईएनजी, क्योंकि कंटीन्यूअस है तो डेफिनेटली आप इसका आईएनजी फॉर्म काम में लेंगे। सो दैट इज हाउ यू वुड मेक द फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कुछ एग्जांपल्स हैं। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर एन आवर। तो भविष्य में मैं चला गया और मैंने 1 घंटे की अवधि बताई कि मैं 1 घंटे से लगातार पढ़ रहा होऊंगा, यानी वो ड्यूरेशन मैंने फिक्स कर दी कि 1 घंटे का जो ड्यूरेशन है वो फ्यूचर के अंदर मैंने बता दिया। इसका जो पहले हमने टेंस देखा था फ्यूचर परफेक्ट, उसमें सिर्फ एक्शन को खत्म करवाना होता है। इसमें फर्क ये है कि इसमें आप उस एक्शन की ड्यूरेशन भी दिखाते हैं। यू आल्सो शो हाउ लॉन्ग द एक्शन लास्टेड। So that's the only difference that you have between the two. And in the end, if you do the negative of it, it will be I will not have been studying for an hour. मैं 1 घंटे से लगातार नहीं पढ़ रहा होऊंगा, ऐसा कुछ हिंदी में। और अंत में अगर इसका प्रश्न बोलना है तो हो जाएगा Will you have been studying for an hour? क्या तुम 1 घंटे से पढ़ रहे होंगे जब हम आएंगे? इसके साथ कुछ ना कुछ एडिशनल होना चाहिए, otherwise in isolation doesn't make sense. Alright, to sum up quickly so that I can take up your questions, एक सिंपल सा हमने एक एग्जांपल लिया, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हम एक समेशन दे रहे हैं, एक पूरा एक आइडिया, एक चार्ट बना के आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम इन टेंसेस को काम में ले सकते हैं। तो अगर सिंपल प्रेजेंट की बात करूं तो शी राइट्स अ लेटर। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करूं, शी इज राइटिंग अ लेटर। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज रिटन अ लेटर। और अंत में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हो जाएगा शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर। फॉर एन आवर इसलिए लगाना जरूरी है ताकि मैं इसको स्पष्ट कर सकूं कि वो 1 घंटे से लगातार पत्र लिखती आ रही है। और अगर मैं सिंपल पास्ट की बात करूं, शी रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रही थी। शी हैड रिटन अ लेटर बिफोर ही अराइव्ड, उसने एक पत्र लिखा था
उसके आने से पहले, यानी किसी और व्यक्ति के आने से पहले उसने एक पत्र लिखा था, और अंत में शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर व्हेन ही अराइव्ड, वो 1 घंटे से पत्र लिखती आ रही थी जब वो पहुंचा, राइट, लिखती आ रही थी, यानी लिखने की जो अवधि है वो दर्शाई है हमने पास्ट में, लेकिन वो अब खत्म हो चुकी है, इसलिए वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और फ्यूचर सिंपल की बात करें तो शी विल राइट अ लेटर, वो पत्र लिखेगी, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रही होगी। फ्यूचर परफेक्ट, शी विल हैव रिटन अ लेटर बाय टुमारो, वो कल तक एक पत्र लिख चुकी होगी। और अंत में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें हो जाएगा, शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर बाय द टाइम ही अराइव्स, जब वो पहुंचेगा तब तक उसे आधा घंटा हो चुका होगा पत्र लिखते लिखते, ऐसा उसका सेंस है। सो इसका हिंदी में हो जाएगा, जब वो आएगा तब वो 1 घंटे से पत्र लिख रही होगी। दैट्स व्हाट यू वुड से इन हिंदी। I hope these tenses are clear to you. That was it from my side. If at all you have any questions, feel free to ask me. Yeah, Srijita, you have something to say? Yes, sir. I just wanted to ask that in spoken English, can we say that will and would are interchangeable? Because sometimes we are using would instead of will. Like we can use it, sir. Is that true? No, it's not true. So if I have been using would and will, then there has some logical explanation behind it. But the thing is, when you're very sure of something that you would want to do, you would use will. And when you are not sure, we say will is for sure, for being sure, for surety, and would is something when we take it as a conditional. So it is a mood in English. It's called a mood. It's not a tense. So would always goes with conditional form. So what would you do if you were the prime minister? So there is a situation. These are called if clauses. So we use would and if clauses. Or this evening I would eat a pizza, or I would watch a French movie, or I would watch a German movie. So would is something that shows you're not sure. But if you say, Srijita, this evening I will eat a pizza, you're sure. But you're not sure, you would say, I would eat a pizza. I'm not sure I would eat a pizza. I might eat a pizza, perhaps. Is that clear? Okay, sir. Thank you, sir. So for Thank you question so much. also, it is applicable. Like, will you do it or would you do it? The same thing is applicable for question also. Right? Absolutely, absolutely. Okay, Yeah. Would, but then when you say would, it shows that you're being polite. It's a form of, being courteous to someone. Would you mind helping me? Would you mind, would you tell me where the address is, where this address is, something of this sort. So would. Yes. Yes. Thank you, sir. Thank you so much, sir. My pleasure. All right. So, in case you have any queries or you would like to join our batch, we have a spoken English course, which is there. You can see on the screen. It starts tomorrow morning from 11 to 12 and evening 6 to 7. And these are the conversational skills that we're going to develop for you. We'll work on a lot of pronunciation, grammar, vocabulary expansion. Interactive session is going to be the whole series of morning and evening batch. And of course, we're going to train you for job interviews and group discussions as well as to how to put your point forward in a strong way, all by letting others speak and all by understanding what others say. So that is it from my side. If at all you have any questions, feel free to ask me right away, or you can always ask me those questions on WhatsApp individually. Anything you'd like to ask me, feel free to ask if at all you have any questions. Anyone, anything? All right. So if there are no more questions, that means everything is clear. I understand that it is a tricky topic. It's an interesting topic. It's something that confuses us a lot. But believe me, with practice and with dedication, you would reach at the right point with practice, of course. So please catch a hold of this video. I'll be sharing this video in the group as well. And if at all you have any questions, feel free to get in touch with us, with me. I wish you all the very best in English learning, especially with the tenses, and see you soon in next series of Sunday speaking series. Thank you so much. Have a Thank you so much, sir. Thank you. take care. Thank you so Bye-bye. much. Thank you, sir. Thank you. so much. Thank you, sir. Thank you, everyone. Take care. Have a great day, sir. You too. Thank you so much.